Okay, good afternoon, all. In yesterday's class, we have discussed about the basic structure of a C program. है ना? तो we have covered header files, what blocks, various sections of of a program, and give explanation about that. So we'll continue with that. Today we'll discuss various data types, variables, how to declare these things, what are their format specifiers, then their ranges, size, how to compute that. In spite of just memorizing all those things, you must be able to calculate that. So we'll start from here. Today we'll today we'll start from here. विजिबल है स्क्रीन प्रॉपर? रीडेबल होता है ये या फुल स्क्रीन करूं? एनीवन? प्रॉपर रीडेबल है या फुल स्क्रीन करूं? सर फुल स्क्रीन कर दीजिए। ओके, अभी ठीक है, इसको भी फुल स्क्रीन करूं? सर फॉन्ट साइज लार्ज कर दीजिए। ओके, अब ज़्यादा ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलिए, यस ओके। सर। In last class, we've discussed structure. Now we'll move to variables, data types, and others. So what is basically variable? In mathematics, when we talk about variables, variables are those that values will vary during the computation. The same thing is over here also. But when we talk about in terms of programming, variable is basically a location, basically a name given to a particular memory location. Definitely, it also used to hold the values, and these values will change during the computation. Definitely, it will change. That's why its name, the name is given to variable. Okay, so variable एक name location है, just like आपने yesterday we have seen. Here we can see I have given the example. When we declare this integer age is equals to 20, so here this age is basically the variable name. This 20 is basically value, and here नीचे हमने बनाया हुआ है memory view कि RAM में ये 20 स्टोर हो गया और इस लोकेशन का नाम हो गया एज. So what definition I have given? The variable is a name given to the memory location. It is the basic unit of storage. But before this variable name, this variable, we have used this int. What is this int? This is basically the data type for this variable. It means which type of data we want to use, accordingly that type of you know mm, variable we have to declare it. So integer, int is basically for integer. It means we talk about the integer values. The similarly we have other other type of data types that we'll see. So the first thing is variable. It is basically the memory location. Okay, just that its value will change during the computation. So now moves to the data types. What is basically data types? Data types in C refers to the extensive system for declaring variable as well as functions of different type. So when we talk about data types, it means which type of value we want to store, whether we talk about the variable or we talk about the functions. Even for function, everything is what sequence or everything is instruction for in a program when we talk about. So for function also we required किस टाइप के हम वैल्यू लेंगे, क्या कंप्यूटेशन करेंगे, क्या आउटपुट देंगे. So it is important to declare which type of value you want to declare. Accordingly, that type of variable or function we need to declare. So if we classified this, so data type can be classified into three: primitive, derived and user defined. तो अभी हम बहुत बेसिक बात करेंगे, तो हम बिल्ट इन या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और वाइड की. तो अगर मैं भी आपसे बात करूं कि मुझे आपकी इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो उस इंफॉर्मेशन में मुझे आपका रोल नंबर स्टोर करना है, आपकी अटेंडेंस स्टोर करनी है.
अटेंडेंस में मैं ए और पी मार्क कर रहा हूँ, आपका मुझे या काउंटिंग मार्क कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 में, है ना, और फिर मैं परसेंटेज निकालूंगा आपको। तो अगर ये तीन वैल्यूज मैं चाह रहा हूँ, है ना, रोल नंबर, और मैं बात कर रहा हूँ आपकी अटेंडेंस की, और मैं उस अटेंडेंस में एपी मार्क कर रहा हूँ, और फिर आपका परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ। तो अगर इस एक जनरल जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है इसमें, तो मुझे समझना पड़ेगा कि फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस टाइप के मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो अगर मैं एपी मार्क कर रहा हूँ तो इट इज सिमिलरली ऑफ समथिंग टाइप कैरेक्टर, इसमें अल्फाबेट्स आ रहे हैं ए बी, ए और पी टाइप के, एब्सेंट और प्रेजेंट। रोल नंबर अगर मैं इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो इसमें रियल वैल्यूज, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आ रही होंगी। ऑल्दो आपका एनरोलमेंट नंबर इज समथिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वी हैव टू सी। पर अगर मैं आपका सीरियल नंबर की बात करूं तो इन दैट केस वी नो कि 1 to 180 है, तो सीरियल नंबर 1 to 180 है। सो अगर इस तरह की वैल्यूज मैं स्टोर करना चाह रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके लिए किस टाइप के डेटा वेरिएबल्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इंटी मतलब अगर डेसिमल वैल्यूज स्टोर करनी है तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप डिक्लेयर करूंगा। सीरियल नंबर मुझे पता है होल नंबर वैल्यूज आएंगी तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज स्टोर करूंगा। और एपी जैसे मैंने बोला तो ये कैरेक्टर टाइप की होगी। और देयर इज अ स्पेशल प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट इज वॉइड, इट इज हैविंग नो टाइप, नल, जस्ट लाइक हमने वॉइड मेन कल डिस्कस किया था। और इसी से हम आगे जाएंगे तो डिराइव्ड, जो इन्हीं से हम आगे देखेंगे, जिसमें हम अरे स्ट्रिंग और पॉइंटर देखेंगे। और फिर यूजर डिफाइन देखेंगे जब हमने कंबाइंड करके हम अपना डेटा टाइप बनाने की बात करते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट टू क्लब ऑल दीज, दैट इज नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो ये प्रिमिटिव जो होते हैं वो बिल्ट इन टाइप के हैं जो अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये डिराइव जो होंगे वो अरे और स्ट्रिंग की अगर हम बात करेंगे तो इन प्रिमिटिव से डिराइव होंगे, और इनके कॉम्बिनेशन के साथ हम बात करेंगे तो वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो जाएंगे। सो दिस इज समथिंग फॉर डेटा टाइप्स। अब किसको, अब अगर इन डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं तो अब हमें ये देखना होगा कि किस टाइप का वेरिएबल कितना स्पेस लेता है ना, और उसे कैसे स्टोर करता है। सो दैट वी हैव टू सी। So this is general thing for data types. So we have seen how many data types here: character, integer, float, and all. Okay. Now one important thing, जो usually you people try to just memorize all these things, but this is important sometimes. The important thing is data type size, range, and format. This format specifier I am talking about, क्योंकि अब जब मुझे एक्सेस करना होगा तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मुझे यूज करना होगा। ओके, सो हियर ओके, so here the important thing is we are talking about the size. So when we talk about integer, so its size is basically, how much size is, what is the size of integer? Anyone? Sir, 2 bytes. Ritik, are you sure? Yes, sir. For Turbo C++, it is 2 bytes. What about character, Mayank? सर इंटीजर 4 बाइट का होता है, वो भी कंपाइलर वैरी करता है। यस, सो दैट्स वाई इन चीज़ों को हमको बिल्कुल समझना होगा। मैंने नीचे लिख रखा है इसे, पर अभी अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने लिखा हुआ है देखो नीचे, द साइज एंड रेंज ऑफ इंटीजर शॉर्ट लॉन्ग और कंपाइलर डिपेंडेंट साइज इन दिस फिगर आर फॉर 16-bit कंप्यूटर, इट विल वेरी फॉर 32-bit, कंपाइलर टू कंपाइलर इट विल वेरी, and 64-bit, these things will be vary, but for as a generally we talk about which type of हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं और हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वी कैन सी कि कैरेक्टर का साइज होगा 1 बाइट, इट्स नॉट बिट, इट्स बाइट। ओके, अभिषेक, बिट बड़ा होता है कि बाइट? सर बाइट। हाँ, तो बाइट बड़ा नाम बड़ा साइज, है ना। वट एवर जैसे भी तरीके से याद रखो, वैसे गड़बड़ नहीं होती, पर 10 में से एक बंदा गड़बड़ भी कर देता है ये,
तो यू शुड डिवाइस योर ओन वे कि हम कभी भी कंफ्यूज हों तो एक कोई लाइन वन लाइनर हमारे दिमाग में हमको क्लिक कर दे। मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये जो रेंज है, ये बाइट से रेंज कैसे निकाल रहे हैं और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इनको समझ लें। अगर मैं अभी इनके पहले एक साइंड अनसाइंड भी लिखा हुआ है, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज दिस साइंड एंड अनसाइंड? Sir, it is positive or the value of unsigned is negative. Unsigned is sir positive, but signed is negative sir. साइंड इज नेगेटिव ऑलवेज? जी ऑलवेज? सर, इसका रेंज होता No, है sir, नेगेटिव टू not always. हाँ ऋतिक। Unsigned is positive or negative, both values. यस सर। अनसाइंड? And unsigned is always positive. अभी आपने 2 मिनट में अपनी बात चेंज कर दी जस्ट ऋतिक। No, sir, unsigned is always positive and signed is positive and My negative, both point is, values. you might take 10 seconds more, but before you speak, just think once, so that आपको अपनी बात Yes, चेंज sir. करनी है। Anyways, Yes, sir. हाँ, nice, you are giving answers. It is expected from our others also, है ना? मैं सबसे एक साथ, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ सबसे इंटरेक्शन हो जाए। अब ये जो मैं बात बताने आ रहा हूँ इसको ध्यान से समझो। एक प्रोग्राम मैं आपसे बनवाऊंगा, वो ये होगा कि भैया मुझे सबकी रेंज कैलकुलेट करके बता दो। तो एक प्रोग्राम आपसे बनवाऊंगा वेरी सून कि सबकी प्रोग्राम की ये आपका पहला असाइनमेंट है, इट्स योर चॉइस कि घर जाके आप इस प्रोग्राम को बनाओ। आज मैं यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि हम कोड लिख पाए। मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूंगा, वही समझाने वाला हूँ। इसके बाद एक प्रोग्राम बना के रख लेना, हमेशा जब भी कोई ऐसी बात आए उस प्रोग्राम को रन कर लेना कि इनका साइज, ये रेंज या इनकी रेंज कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कैरेक्टर का साइंड लिखा है तो बाइट, अगर साइज तो हमें पता है कैरेक्टर का 1 बाइट होता है। इसकी रेंज लिखी हुई है -128 टू 127 और अनसाइंड कैरेक्टर में लिखी हुई है 0 टू 255। सर उसका डिविजल बाय 2 किया जाता है उसका रेंज निकालने के बाद। उसकी रेंज निकालने के बाद उसका डिविजल मतलब उसको डिवाइड किया जाता है 2 से और उसका रेंज फाइंड किया जाता है। 0 से 127 होता है इसका, क्योंकि 0 भी आ जाता है उसका। हाँ, तो मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो सिंटू। सर इसका पहले रेंज निकाला जाता है 2 के पावर कुछ करके, उसके हाँ। बाद उसका डिवाइड किया जाता है बाई 2 के करके, और उसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। -120 से 128 से लेकर 0 तक, हम्म। और यहाँ 0 से 127 तक। ओके, तो मैं आपसे वही तो रिलेशन पूछ रहा हूँ, ये हो जाता है कैसे हो जाता है वही तो बोल रहा हूँ जिसको अपन समझ लें। आप इधर समझो, अगर 1 बाइट कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। और 2 टू द पावर 8 कितना होता है? और 2 टू द 256 पावर 8 होता है 256। जी। तो इसकी रेंज है 0 से 255। ठीक है, तो ये 2 टू द पावर जो साइज था इन टर्म्स ऑफ बिट्स, 2 बिट में 1 बिट में 8 बाइट्स हो गए ना, तो 2 टू द पावर 8। तो 0 से 2 टू द पावर 8 -1 तक रेंज गई। 0 से 2 टू द पावर 8 -1 तक रेंज गई। ऊपर आओ, पर अगर ये साइंड है, जहां भी साइंड वर्ड आया आपको माइनस प्लस दोनों लिखने लगा, तो साइंड का मतलब साइन है। साइन होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब अगर वहां देखो ये 256 था तो 128 इससे एक कम होता है ना भाई। 128 के बाद पावर और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 256 आता है। तो अगर ये 2 की पावर n था तो ये पावर में 2 की पावर में n-1 है, और फिर 2 की पावर n-1 +1 -1 समथिंग लाइक दैट। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो जो मैं आपसे पहला प्रोग्राम बनाने की कह रहा हूँ ना, वो क्या है, आज मैं आपको सबके साइज बता दूंगा, और वो साइज भी नहीं पता ना तो वो भी प्रोग्राम से निकाल लोगे, वो भी बता देता हूँ अभी। तो आपका आज एक असाइनमेंट है, आपकी चॉइस है, चाहे आप इसे याद करो, चाहे मैथमेटिक्स से करो, या फिर फॉर वन टाइम यू मेक अ प्रोग्राम कि हर टाइप का एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और मैं एक ऑपरेटर बता दूंगा, उससे उसका साइज निकाल लो। अगर उसका साइज निकाल लिया तो मैं मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, सबकी रेंज निकाल लो, और फिर उनका साइंड भी डिक्लेयर करो और अनसाइंड भी डिक्लेयर करो। हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं ना, तो ये डेटा टाइप है। हमने कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट की बात करी अभी, पर उसके साथ 2 नई चीजें आ गई, साइंड और अनसाइंड। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये चॉइस है आपकी, हम इसको थ्योरी में ही करके खत्म कर सकते हैं,
बट अगर आप इसे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप कर सकते हो कि हर टाइप का एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, सीधे कंपाइलर पे इस पे टर्बो पे जाके कोड करना, ये मैं उसका भी सैंपल बता दूंगा अभी। तो आपको क्या करना है, सब टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करो, उनका साइज भी आप ही निकालो, क्योंकि आपको तो नहीं पता, मतलब आप अपने इसी मेमोरी से नहीं, क्योंकि अभी एक ने आंसर गलत दिया, ये डिपेंड करेगा, मैंने कहा कंपाइलर टू कंपाइलर, सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। तो जब ये वेरी करेगा तो व्हाई नॉट टू कैलकुलेट बाय सिस्टम इट्स ओन। आप जिस पे सी पे काम कर रहे हो उसी पे से निकालो उसका साइज, और जब साइज निकाल लिया तो रेंज भी निकालो, और फिर आउटपुट को प्रॉपर इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करने की कोशिश करो। तो अभी तो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया, मैं आपको एस्केप सीक्वेंसेस आई विल ट्राई कि आज खत्म होता है, नहीं तो अगली क्लास में हो जाएगा। तो इस टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना आना चाहिए। तो बिफोर यू वी मूव फॉर फर्दर, हमको ये बेसिक चीजें आ जानी चाहिए। तो अभी जस्ट मैं जो बताना चाह रहा हूँ, बाकी तो आप ये सब थ्योरी वे में पढ़ लेते हैं। वन साइज वन है, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, अगर मैं कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट की बात कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे पॉइंट कहने का था कि कैरेक्टर के लिए %c ध्यान रखें, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इनपुट और आउटपुट लेते समय हमें मेंशन करना पड़ेगा printf और scanf में कि किस टाइप का, ये बता देता है कि किस टाइप की वैल्यू से डील हो रहा है। %c फॉर कैरेक्टर, %d फॉर इंटीजर, और %f फॉर फ्लोटिंग पॉइंट। अभी अपन इन्हीं तीन को लेके बातें कर रहे हैं। तो ये जो रेंज की बात कर रहा था वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले ये वर्ड्स दिख गए हमें, साइंड और अनसाइंड। तो मैंने एक चीज नीचे लिखी, उसको देखें। ये लिखी हुई जो चीज है वो क्या है? थिंग इज कि हमने कहा कि ये कंपाइलर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो अभी हमें दिखा कि अगर मैं इसे अनसाइंड कहता तो 0 से 255, साइंड की बात कर रहा हूं तो -128 to 127। तो अगर मैं 0 से 255 की बात कर रहा हूं तो मुझे 0 to 2n-1, वेयर n इज द साइज इन बिट्स, वेयर n इज द साइज इन बिट्स। देखो बहुत स्पेसिफिक बात करनी चाहिए, बाइट लिखा है यहाँ साइज, मतलब बिट्स में जाऊंगा तो वो 8 का फैक्टर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। और ये 8 से ही आ रहा है, मतलब हम बिट्स से डील कर रहे हैं। यही मैंने आगे आपको पेस्ट करा हुआ है, जिसने भी किसी ने मुझे आंसर किया था ना 4 बाइट, किसने किया था आंसर 4 बाइट? सर सिंटू सर। हाँ, तो सेंटू, ये मैंने आप ही के लिए मैंने इसको, आप ही के लिए मैंने ये वाला भी लगा रखा है कि आप 32 बिट सीपीयू और 64 बिट जीपीयू में देखो कि मैंने इंटीजर साइज कितना लिखा हुआ है, 4 4 बाइट। इन बाइट्स, इन बाइट्स। ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट हैं, और इसको मैं पॉइंट आउट क्यों कर रहा हूँ? आई वांट यू पीपल के आप बहुत बहुत स्पेसिफिक हो जाओ, बहुत बारीक हो जाओ। जब हमारा कंपाइलर एक सेमीकोलन की मिस्टेक को नहीं छोड़ता, तो हम इतनी बड़ी बात तो कैसे मिस कर सकते हैं कि वो बिट्स है कि बाइट्स है। तो ये ऑलवेज इनिशियली आपको इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, ग्रेजुअली हमारी आदत हो जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हो शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, है ना। अभी मैंने आप फोकस करा है केवल कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट, है ना। ये जो वैल्यूज आ रही हैं वो मैंने कहा वही 2 to the power 8, एन अगर 8 था तो ये 7 हो गया, तो 2 to the power n-1, ये n-1 है, तो 2 to the power माइनस 2 to the power n-1 से 2 to the power n-1 पावर में और वैल्यू में -1, क्योंकि 127 क्या हो जाएगा, 2 to the power, वो 28 होगा 2 to the power 7। तो 2 to the power 7 कैसे आया, 2 to the power n-1 से, और उसके बाद वैल्यू में 1। तो इन दोनों बातों में अंतर है ना। तो इन दोनों को डिफरेंस को समझना। तो ये जो मैं कह रहा हूं इसको फिर मैं आगे लेके जाता हूं। दो चीजें बोली, एक तो मैंने इन रेंज को समझा रहा था, फिर मैं आपको मैथमेटिक्स समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो माइनस से एक वैल्यू कम होने से, ये साइंड होने से क्या फर्क पड़ रहा है, साइंड और अनसाइंड की बात में। तो अब चलो एग्जाम्पल कैरेक्टर का लो। कैरेक्टर का साइज कितना होता है? साइज ऑफ द कैरेक्टर इज 1 1 बाइट सर। बाइट। कितनी बिट्स होंगी 1 बाइट में? 8 बिट्स। 8। तो आप नीचे देखो मैंने कितनी बिट बना रखी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब ये साइंड होगा तो पहली बिट रिप्रेजेंट करेगी क्या, कि साइन क्या है, और रेस्ट 7 फॉर द डेटा। इसलिए रेंज क्या हो गई आपकी, वो एक कम हो गई 2 to the power 7, ठीक है। और अनसाइंड में सारी 8 बिट्स यूज होंगी, इसलिए 2 to the power 8, तो 0 से 255 हो गया वो। और
इस रिप्रेजेंटेशन में 0 और 1 की बात होगी केवल, तो ऑल 1 विल रिप्रेजेंट, यू कैन अंडरस्टैंड, ऑल 8 1s विल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 255, ठीक है ना। तो ये जो अपन ने देखा था यहाँ 0 to 255, ये अनसाइंड में, तो यहां बताया 7 के चक्कर में पहले उस बिट से क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो सिंगल बाइट को हमने बताया, साइंड और अनसाइंड में हमने बोला कि ये पहली बिट क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी साइन, इसलिए 7 बिट बची, और बाइट में अनसाइंड में क्या होगा, पूरी 8 बिट यूज होंगी। सो दिस इज द लॉजिक। सो अनसाइंड कैरेक्टर, द वेरिएबल कंज्यूम ऑल द 8 बिट्स ऑफ द मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन बिट नहीं होती, इसलिए रेंज क्या हो जाती है, 0 से 255। ये बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आई, साइंड और अनसाइंड में क्यों वैल्यूज रेंज में चेंज आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, Yes, sir. सबको आ रहा है बेटा। Yes, sir. ओके, हाँ, मैंने जो आपको फॉर्मूला देने की बात करी थी, अगर अब आप इसको देख रहे हो मैथमेटिक्स को, ये आपके सामने थी, तो इस मैथमेटिक्स को हमने वो 8 के फैक्टर से कन्वर्ट करने की बात करेंगे, तो हम विल रीच टू द मैथमेटिक्स। क्योंकि यही चीज अगर मैं इंटीजर में बात करूंगा, तो इंटीजर की हमने रेंज बोली, हमने इंटीजर की रेंज क्या बोली, साइंड इंटीजर में -327,682 प्लस 32767, मतलब यहां पे देखो 128 पूरा आता है, मतलब 2 to the power n -1, ये पावर में ही है 2 to the power n -1, और यहां देखो एक वैल्यू कम हो जाती है, तो 2 to the power n -1 दिस पॉज इज बेसिकली कि पावर से हटके वैल्यू पे आ गए हम, मतलब ये है 2 to the power -2 to the power 7 से 2 to the power 7 -1, तो यही मैंने मैथमेटिक्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कि -2 to the power n -1 से मिनिमम जो है वैल्यू माइनस से मैक्सिमम रेंज क्या होगी, 2 to the power n -1 देन -1, दिस -1 इज वैल्यू, दिस इज इन पावर एंड दिस इज इन वैल्यू, इसलिए 127 आया प्लस में। और अनसाइंड में वैल्यू क्या होगी, अनसाइंड होगी कहां से कहां तक, 0 से 2 to the power n -1, 2 to the power में ये n -1 है ना, 0 से 255 आई, तो 2 to the power n होता है 256, ये n है पावर में, और ये माइनस बाहर गया, तो ये 255 आया 0 से 255, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो सब विल यूज फॉर वैल्यूज, नो बिट इज वेस्टेज फॉर साइन प्लस और माइनस। तो यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है, Yes, sir. कोई पूछना चाह रहा है कुछ, एनीवन? ओके, so we are moving further. Now we talk about, we have talked about data types. Now we talk about variables and variable names. That's what I have given, a certain example that nomenclature should be, proper. तो वेरिएबल के रूल्स क्या हैं, हम वेरिएबल नेमिंग के रूल्स हैं ना, टाइप वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल की हमने बात करी थी, वेरिएबल क्या है, एन एंटिटी दैट मे वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिर हमने डेफिनेशन देखी थी, वेरिएबल नेम्स आर वेरिएबल्स नेम्स आर द नेम गिवन टू द लोकेशन इन मेमोरी, जो हमने सबसे पहली स्लाइड में एग्जांपल दिया था। ये हो सकते हैं इंटीजर, रियल, कैरेक्टर और अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, हमने एक चीज वो पिछली 2 क्लास पहले हमने देखा था कि इंटीजर में क्या वैल्यूज आएंगी, फ्लोट में क्या आएंगी, कैरेक्टर में क्या। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स, तो वेरिएबल नेमिंग के क्या रूल्स हैं, नाउ विल डिस्कस दैट। कि जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमको जो डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं उन, और वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं वैल्यूज स्टोर करने के लिए, तो उनका नेमिंग कन्वेंशन कैसे होना चाहिए और क्या रूल्स हैं उसके लिए। सो दीज रूल्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 इंपॉर्टेंट रूल इज लेंथ ऑफ द नेम। जैसे आप देखते होगे ना, डेटाबेसेस में देखते हो या किसी उसमें आप जब एंट्रीज फिल करते हो, तो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि नेम साइज शुड बी 20,
20 कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे भी वेरिएबल नेम की लेंथ है 1 से 31 अल्फाबेट्स, 1 से 31 अल्फाबेट्स, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। तो हमें पता है A से Z कैपिटल में ले सकते हैं, A से Z स्मॉल ले सकते हैं, डिजिट 0 to 9 यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। केवल इनके कॉम्बिनेशन से 1 से 31 कैरेक्टर्स तक, 1 से 31 अल्फाबेट्स तक, अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन तक, मतलब 31 लेंथ हो सकती है। 1 तो जरूरी है, 0 लेंथ मतलब कोई नाम ही नहीं हुआ, तो बिना नाम के तो छोड़ा नहीं जा सकता वेरिएबल, तो मेमोरी लोकेशन को क्या नाम देंगे। तो मे बी साइज, जैसे जस्ट लाइक हम डिक्लेयर करते हैं इंटीजर a, तो a इज बेसिकली द वेरिएबल नेम गिवन टू दैट मेमोरी लोकेशन। तो ये 31 साइज 1 से 31 हो सकता है। अच्छा, कुछ अगेन कंपाइलर वाइज ये लेंथ वेरी करेगी एंड ऑल, बट अगेन व्हाई टू राइट दीज लेंथी नेम्स। हाँ, हमारा क्लियर होना चाहिए प्रोग्राम के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इट शुड नॉट लाइक जो मैंने कल कहा था, कुछ लोग बस ABCD XYZ 1 2 3, है ना, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 V1 V2 V_1 A_1 A_2 ऐसा करते हैं। इट शुड बी रिफ्लेक्ट्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जो आ रहे हैं। जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना रहे हो तो व्हाई नॉट टू गिव नेम फॉर यूजिंग वेरिएबल प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल डेफिनेटली इंटीजर टाइप का होगा, रेट फ्लोटिंग होगा क्योंकि 6.5 हो सकता है, 6.7 हो सकता है एंड ऑल। इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी तो इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर हो। तो द वे यू नीड टू डिसाइड कि किस टाइप का होगा, तो वो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा कि कैरेक्टर होगा। और नेमिंग कन्वेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो नाम ऐसा ना हो कि अगर आप मान लो कि ए प्रिंसिपल के लिए A यूज कर रहे हो, रेट के लिए B यूज कर रहे हो, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए C यूज कर रहे हो, टाइम के लिए D यूज कर रहे हो, तो रीडेबिलिटी ऑफ कोड बहुत पुअर होगी। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, अननेसेसरी लंबे नाम लिखने का कोई मतलब नहीं है, टाइपिंग एफर्ट्स बढ़ा रहे हैं। बहुत छोटे इसलिए नहीं जरूरी है कि जब बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल यूज करते हैं, तो इट शुड बी सेल्फ अंडरस्टूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लेंथ अननेसेसरी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, और ऐसा ना हो कि सिंगल कैरेक्टर यूज कर रहे हो। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, मतलब ये नंबर से शुरू नहीं होगा। हमने कहा ना कॉम्बिनेशन किसका है, अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर का। वेरिएबल नेमिंग 1 से स्टार्ट नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। इट आइदर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो या अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे, फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। सो दिस इज द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट इज नो कॉमास और ब्रैकेट्स आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम। ना तो कॉमा आएगा ना ब्रैकेट आएगा। वेरिएबल नेम सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट हो सकता है, सिंपल कॉमा इंटरेस्ट नहीं हो सकता, सिंपल और कोई स्पेशल सिंबल नहीं आएगा। सिंपल इंटरेस्ट मिला सब बिना स्पेस के लिखोगे चल जाएगा। तो स्पेस इज नॉट अलाउड, ब्लैंक नॉट अलाउड, कॉमा नॉट अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, केवल अंडरस्कोर या फिर अल्फाबेट और डिजिट्स, इनका कॉम्बिनेशन होगा वेरिएबल नेम। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है SI अंडरस्कोर इंट M अंडरस्कोर HRA पॉप अंडरस्कोर E अंडरस्कोर 89, तो ये हो सकता है कि डबल अंडरस्कोर यूज कर लिया है एंड ऑल। सो दिस इज द रूल्स फॉर फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम्स। Now the important point is these rules remain same for all type of variables. It's not like एक integer variable declare करने के लिए variable naming convention है, तो ये सबके लिए सेम होंगे, even for functions also. Now the point is in variables के हम नाम दे रहे हैं, तो इनको differentiate कैसे करेगा हमारा कंपाइलर। तो जो कंपाइलर differentiate करेगा वो इनके टाइप से करेगा, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, डेटा टाइप्स। तो C compiler able to distinguish between the variables by making it compulsory for you to declare। तो हमने कहा ना डिक्लेयर कैसे करेंगे, पहले डेटा टाइप आएगा। फॉर इंटीजर विल यूज कीवर्ड INT, फॉर फ्लोट विल यूज कीवर्ड FLOAT, फॉर कैरेक्टर विल यूज द कीवर्ड CHAR। सो दीज आर द कीवर्ड जो हम नेक्स्ट व्यू साइड में कवर कर लेंगे इसे। तो ये डिफरेंशिएट कर पाता है कंपाइलर जब हम इसे इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो कंपाइलर इसे डिफरेंशिएट कर पाता है। एंड दिस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम।
जैसे हमने एग्जांपल दिया था, लास्ट क्लास में भी देखा था। अभी वी विल मूव ऑन टू दैट। तो अब क्योंकि हमने की यहाँ पे वर्ड बोल दिया कि इंटीजर के लिए INT, फ्लोट के लिए FLOAT, कैरेक्टर के लिए CHAR, तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर द कीवर्ड्स। दीज ऑल आर द कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? इनका पहले से ही फिक्स है डेफिनेशन, इनका पर्पस फिक्स है, जो ऑलरेडी से रिजर्व है, इनको हम यूज नहीं कर सकते। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose meaning has already been explained to the compiler। तो अगर मैं सी कीवर्ड्स की बात कर रहा हूं तो सी कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स whose meaning has already been explained to the compiler। अब अगर इनके ऑलरेडी वर्ड्स कीवर्ड्स ये हैं, इनके मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को बताए हुए हैं, तो हम इन्हें वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। तो आप इंटीजर INT स्पेस INT लिख के इंटीजर डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर ऑलरेडी कीवर्ड है। इट मींस द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, बिकॉज इफ वी डू सो वी आर ट्राइंग टू असाइन अ न्यू मीनिंग टू द कीवर्ड्स व्हिच इज नॉट अलाउड बाय द कंप्यूटर। तो ये जो 32 कीवर्ड्स हैं, द कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। तो इनको आप देखेंगे तो जब आप विल राइट द प्रोग्राम, तो जैसे ही इन कीवर्ड्स को लिखते हो उनका कलर चेंज हो जाएगा। इट विल लुक लाइक वाइट, है ना, एकदम। क्या करेंगे? इनका कलर चेंज हो जाएगा वंस यू राइट दिस कीवर्ड्स। सो इनका मीनिंग ऑलरेडी क्या है? ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग इज ऑलरेडी क्लियर टू कंपाइलर, सो वी कैन नॉट चेंज देयर मीनिंग। दैट्स व्हाई ऑटो इंटीजर INT स्पेस INT करके हम इंटीजर नाम से इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स हम यूज नहीं कर पाएंगे। और अभी हम जब आगे देखेंगे तो आप इसमें से बहुत सारे देखोगे, ब्रेक, केस, कंटिन्यू, डू, इफ, गो टू, फॉर, ये सब कंडीशनल और कंट्रोल स्टेटमेंट में यूज होते हैं। स्विच, फिर आप देख रहे हो स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। यूनियन, यूनियन के लिए यूज होता है। साइन और अनसाइन, अनसाइंड आपको दिख गया। डबल, ये सब डेटा टाइप में आ गया। लॉन्ग, इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब डेटा टाइप्स हो गए। साइज ऑफ, साइंड, शॉर्ट, रिटर्न, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हम धीरे धीरे सब यूज करते जाएंगे। हमने कल कुछ एग्जाम्पल देखे थे, तब हमने ये देखा था कि हम कुछ आउटपुट पे डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो हम क्या करेंगे? तो दो फंक्शंस हम समझ लें। ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है, एक printf और दूसरा इनपुट के लिए scanf। जो भी हम कंप्यूट कर रहे हैं या हम कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, फॉर दैट वील यूज द printf फंक्शन। सो printf फंक्शन इज वन ऑफ द मेन आउटपुट फंक्शन। इस फंक्शन का फॉर्मेट कैसा है? देखो, हमने कल प्रोग्राम देखा था, हमने क्या करा? हेडर फाइल इंक्लूड करी, ये लिंकिंग सेक्शन है। इंटीजर मेन, हमने एक कमेंट डाला, डिस्प्ले द स्ट्रिंग इनसाइड द कोटेशन। और printf में हमने क्या लिखा? सी प्रोग्रामिंग। तो जब इसे कंपाइल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? सी प्रोग्रामिंग। तो दिस printf is used for printing the message on the screen. It is also use the variable values. For that we use is format specifier। ठीक है, for that we use format specifier। तो ये तो आउटपुट के लिए यूज हुआ। अब अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो विल यूज scanf फंक्शन। देखो, printf बता रहा है स्क्रीन पे प्रिंट, है ना, और स्कैन मतलब वैल्यू स्कैन करने की बात कर रहा है, तो इनपुट के लिए होगा। सो इन सी प्रोग्रामिंग scanf इस फंक्शन is used to take the input from the user। So scanf function reads formatted input from the standard input such as keyword। तो यूजर से अगर हम डेटा इनपुट लेना चाहते हैं तो हम scanf यूज करेंगे। अब इसका एग्जांपल देख लो। अगेन फर्स्ट हमारी स्टेप होती है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, देन हम लिंकिंग सेक्शन पे आते हैं, फिर हमारा मेन, अगर हमने कांस्टेंट और वो डिक्लेयर नहीं करे हैं तो यहाँ पे आप देखो हमने एक इंटीजर डेटा टाइप है, एक वेरिएबल का नाम लिया टेस्ट इंटीजर। तो ये हमारे नामिंग कन्वेंशन के साथ है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, 31 लेंथ से कम है। printf एक स्टेटमेंट जिससे हम डिस्प्ले करा पाएंगे इंटीजर, एंटर इन इंटीजर, ताकि यूजर को पता हो कि क्या करना है। नाउ scanf इज यूज्ड फॉर टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम द यूजर थ्रू कीबोर्ड। तो यहाँ देखो हमने ये टेस्ट इंटीजर के पहले एम्परसेंड ये लगाया है,
ये दिस इज एड्रेस और ऑपरेटर, ये बता रहा है कि %d मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू, और ये बता रहा है एड्रेस ऑफ टेस्ट इंटीजर। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू कहां से रीड करना है इसको, है ना, उस नेम लोकेशन की कहां पे वैल्यू लेना है और कहां पे रख देना है, एट दिस लोकेशन, टेस्ट इंटीजर लोकेशन। एंड अगेन printf for displaying the value whatever you have taken the input। तो अगर हमने इसको रन किया तो हमने वैल्यू ली होगी सपोज 10, तो आउटपुट आ जाएगा नंबर इज इक्वल टू 10। सो ये %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। किस टाइप की वैल्यू, इंटीजर होती है, इंटीजर के लिए %d मैंने बताया था, कैरेक्टर के लिए %c, और फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए %f, मतलब डेसिमल वैल्यूज के लिए। तो अभी जो हमने डिस्कस किया फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो यू कैन सी %d, %f और %c। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड ड्यूरिंग द इनपुट एंड आउटपुट। इट इज अ वे टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अ वेरिएबल ड्यूरिंग टेकिंग इनपुट यूजिंग scanf और प्रिंटिंग यूजिंग printf। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जब हम वेरिएबल डील करते हैं, यहाँ पे तो हमने देखो डायरेक्ट मैसेज लिखा था, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं था, इट्स जस्ट सिंपल काइंड ऑफ मैसेज। बट हियर इन लास्ट 2 एग्जांपल्स आपने क्या करा, %d लिख के बताया कि वो इंटीजर टाइप वैल्यू की बात कर रहे हैं और उसका नाम क्या है, टेस्ट इंटीजर। अगेन यहाँ देखो, ये तो मैसेज के लिए था नंबर इज इक्वल टू, पर इससे इस इन्वर्टेड कॉमास के बीच में हमने लिखा है %d दैट टेल्स कि हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने की बात कर रहे हैं, और उसका नाम क्या है, किस लोकेशन से, टेस्ट इंटीजर। So this is about format specifier. So before we move to write the program, few important instruction for while you write the program on your editor. So what are those instructions? Important instruction. The number one is each instruction in C program is written as a separate statement. हमें मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं, तो यहाँ देख रहे हो अपन ने कितने स्टेटमेंट लिखे, एक स्टेटमेंट लिखा ये इंटीजर डिक्लेयर करा, एक लिखा हमने प्रिंटेड स्टेटमेंट दिया, एक हमने स्कैनफ स्टेटमेंट दिया। सो दीज आर द सेपरेट इंस्ट्रक्शन एंड every executable statement must be ended with semicolon. The statement in a program must appear in the same order in which we wish to execute them। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर वो, अगर हम ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो हम जंप, गो टू और ये सब स्टेटमेंट यूज करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट, जो अभी हमने नहीं पढ़े। 2 वर्ड्स के बीच हम स्पेस इसलिए देते हैं कि रीडेबिलिटी बढ़ जाए, पर ऐसा जरूरी नहीं होगा, है ना। आप है ना कॉमा के बाद डायरेक्ट लिख सकते हो, ओनली कीवर्ड्स के बाद आपको स्पेस देना होगा। इसके बाद आप स्पेस नहीं भी दोगे कॉमा के बाद तो कोई इश्यू नहीं होगा, पर प्रॉपर रीडेबिलिटी के लिए हम ऐसा करते हैं। ऑल स्टेटमेंट आर एंटर इन स्मॉल केस लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सी इज बेसिकली व्हाट, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी इज व्हाट, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, है ना। स्मॉल केस और अपर केस में डिफरेंस आएगा, स्मॉल केस और अपर केस में डिफरेंस आएगा। C has no specific rule for the position at which a statement to be written, है ना। तो आप हम ये एडिटर खुला हुआ है, तो हम इस पे विजिबल है, ये फुल स्क्रीन दिख रहा है, हाँ, Yes, sir. ये Yes, एडिटर sir. दिख रहा है ना, सी, टर्बो सी। Yes, sir. तो अब आप यहाँ देखो, मैंने कहा ना इसमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, मैं इसे यहाँ भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा, कल वाले इस पे बात करें, मैंने ऊपर देखो इस पे क्या दे रखा है, डॉक्यूमेंट सेक्शन पे मैंने साइज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, डेट डाल रखी है आज की। नेक्स्ट आया लिंक सेक्शन, मैंने हेडर फाइल्स यूज करी। फिर आया वॉइड मेन, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूटेबल वो स्टार्ट हुआ। ये सबसे पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके बीच में हमने क्या लिखा हुआ है, हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि हमने कहा ना इसका स्पेस आगे पीछे कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इंडेंटिंग का वो नहीं होता, पर हमारी प्रॉपर रीडेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप यहाँ देखो, मैंने पहला फंक्शन CLR SCR यूज करा है, ये भी लाइब्रेरी फंक्शन है जो यूज होता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए, जो प्रीवियस आउटपुट है वो उस पर नहीं आएगा।
यहाँ डिक्लेरेशन देखो, हमने कीवर्ड है आईएनटी लिखते से ये क्या होगा, जैसे ही मैंने आईएनटी लिखते से इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये कीवर्ड है। वाइट में देखो कलर चेंज हो गया, ये कीवर्ड है। तो इंटीजर डेटा टाइप है, हमने वेरिएबल का नाम दिया ए। फ्लोट डेटा टाइप है, हमने दिया नाम बी। कैरेक्टर का नाम सी। लॉन्ग इंट का नाम एक्स। तो हमने डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स यूज करे। और यहां देखो हमने सिर्फ प्रिंट क्या करा है, हमने एक अगेन लाइब्रेरी फंक्शन यूज करा है साइज ऑफ। वो उस वेरिएबल का क्या देगा, साइज डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने कहा था हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %d। साइज एक इंटीजर वैल्यू होगी, यहाँ भी देखो %d %d %d। तो ये हमारा डिस्प्ले के लिए हमने क्या करा, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने कोई वैल्यू नहीं दी, कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ डिक्लेयर करा, रन कर रहे हैं हम। क्या आंसर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? 2 4 1 4, ये एक वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, तो समझ में नहीं आया। विजिबल है क्या 2 4 1 4? यस सर। Yes, sir. तो यहां से हमको ये समझना है कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर तो समझे, हमको क्या समझना है, एस्केप सीक्वेंसेस समझना है। %, ये हमने बैकस्लैश n मारा, ये बैकस्लैश क्या मारा, n, एंड दिस बैकस्लैश n बेसिकली, नाउ ये क्या हो गया, न्यू लाइन पे आ गया ना। Yes, sir. ये एस्केप सीक्वेंसेस हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे एस्केप सीक्वेंसेस। अब हमको दिख रहा है पहला आउटपुट है 2, दूसरा 4, तीसरा 1, चौथा 4। तो पहला क्या था, साइज ऑफ दिस, Integer type. है ना, a, देन साइज ऑफ b। तो अगर मैंने प्रिंटफ में मैसेज प्रॉपर दिया होता तो ये हमारे लिए बेहतर देता, इसीलिए ये मैसेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। रीडेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखो साइज ऑफ इंटीजर, पहले 2 आया, बाद में साइज क्यों आया, क्योंकि मैंने %d पहले यूज किया जी. है ना। ये मैं इसके पहले करता तो डिस्प्ले चेंज हो जाता। ये सब चीजें आप करते हुए देखते जाएंगे तो आपको आंसर मिलते चले जाएंगे, है ना। अगली क्लास से मैं सीधे सिस्टम पे ही ऐसे काम करूंगा, जैसे आज मैंने आपको थोड़ा सा एक सैंपल दे दिया। चेंज हो गया, देखो साइज ऑफ इंटीजर और 2 आया। तो इन दिस वे विल डू। अब देखो कि बाद में आया पहले आया, ये हमको देखना होगा, इसको पहले देना था, एक स्पेस मारा, एक स्पेस मार दिया। ये मैं फॉर्मेटिंग क्यों आपके सामने बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा था टेबुलर फॉर्म में आना चाहिए, है ना। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जो अभी हमने डिस्कस किया था, क्या साइज, और एक मैथमेटिक्स बताई 2n से कहां तक। तो आपका पहला आज का जो टास्क है, आपकी चॉइस है, मैंने तो आपको जस्ट यहाँ तक वो करा है। आपका काम ये होगा कि जितने भी टाइप के डेटा टाइप्स हमने पढ़े उनका साइज के लिए मैंने साइज ऑफ बता दिया आपको, ठीक है। आपको इनकी रेंज निकालनी है 2n से 2 से प्लस के बीच, ये सब। तो यहां से आप उसका साइज निकालो और साइज को 2 की पावर में कन्वर्ट करो, 2 की पावर से वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ के अलावा तो कुछ यूज नहीं करना, कुछ भी नहीं यूज करना, सिर्फ प्रिंटफ यूज करना है। असली चीज यूज करना है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला कि 2n-1 कैसे लिख पा रहे हैं, है ना। तो इसको ट्राई करना, फिर अपन कल की क्लास से वो करेंगे। आज मैं थोड़ा सा रोल कॉल करने के मैं इंटरेस्टेड हूँ, ताकि मुझे वो दिखें हमारे कितने लोग हमारे साथ हैं अभी, है ना। उमर, Yes, sir. उमर है। पार्थ, यस सर। पार्थ है। राहुल, Yes, sir. ऋतिक, Yes, sir. शैलेंद्र, Yes, sir. सिंटू, Yes, sir. स्मृति। Yes, sir. हाँ, मैंने कहा ये चेक कर लो, ऐसा तो नहीं क्लास ऑन करके छोड़ देते हो। No, sir. उस्मा, यस सर। सर ओसामा। ओसामा, सॉरी, है ना। इसीलिए कैमरा ऑन नहीं होगा तो मालूम है, मैंने उस्मा प्रोनाउंस कर दिया तो मैंने समझ लिया कि ओसामा नहीं है, उस्मा है। ठीक है, एनीवेज। यस सर। ओके, अभिषेक, यस सर। मयंक, Yes, sir. मोहित, यस सर। नमन। Yes, sir. तो आज का पहला प्रोग्राम मैंने जो बताया, है ना, ये आपको सबका साइज और सबकी रेंज,
अब हम ना हर छोटी छोटी चीज के लिए कोड करने की कोशिश करें। अभी कोई बहुत फंक्शन नहीं लिखना, कुछ नहीं करना ना, बहुत सिंपल बात करी ना। आई वांट टू सी कि जो, देखो कोई फोर्स नहीं है, ये आपकी चॉइस है, ये पूरा कोर्स, ये पूरा पूरा प्रोग्राम ही कोई फोर्स नहीं है, ये सेल्फ मोटिवेशन के साथ चल रहा है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जितने डेटा टाइप्स पता है उन सबका साइज और उसको कैसे फॉर्मेट करना है, जैसे अभी मैंने आपको डिस्प्ले पे बताया ना, अभी मैंने डिस्प्ले पे जैसे बताया, ऐसे आपको और डिस्प्ले सीक्वेंसेस के साथ, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे टेबुलर फॉर्म में उसको डिस्प्ले करना है। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में अगर हम कर पाए, मैं आपको फिर कोड का डिस्प्ले का वो बता दूंगा, पर आप उसे ट्राई करें, है ना। ओके, कुछ कुछ कहना चाहते हैं? क्लोज करें फिर आज की क्लास।